Hello guys, welcome to RP Academy. So today we are going to start with the 19th of March editorials, and the first editorial itself talks about GDP growth, that is first happiness beyond traditional economics. So what this editorial is and who has actually been the author of this particular article. So former chief economic advisor and his co-authors have concluded in a study that there are some things like Indian GDP. Okay, Indian GDP actual growth is from approximately 4 to 4.5, but the official data says 6%. So they say that what is the real question? If the GDP grows, are people happier? So India's rank is 118 out of 147 in World Happiness Report. So that means that growth is not even equivalent to happiness automatically. So there in this particular editorial, there is an independent economist and he's a famous economist who says that growth is not just about GDP numbers, but also it increases happiness and quality of life. So now the new approach must be happiness oriented growth, where this author is suggesting four new industries: safety, cleanliness, relocation and relaxation. He says that we should be focusing on safety as an industry, where we want to reduce fear. We want to reduce fear. And what we actually want? We want here to reduce crime and any kind of risk, and rather focus on cleanliness as an industry, where we can improve our environment and health. Along with that, we have to work on relocation, where we are reducing the congestion, especially in the urban areas, and focusing on land issues as well. Now, relaxation. It comes under reduce stress and improve lifestyle. So these sectors are underdeveloped but high demand. Expanding them is equal to GDP plus jobs and plus your happiness. Okay. So let us read this article first of all, and then we will be reading about the other data. So यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई देखो, एक वेरी पावरफुल और अनकन्वेंशनल आइडिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपका इंक्रीज नहीं कर रहा केवल जीडीपी, रेदर इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन ह्यूमन हैप्पीनेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. So higher GDP is automatically not leading us to a better well-being. See, economic growth and economic development, these are two different concepts that we have also learned many times, right? So this is what this particular article talks about. The measurement debate. This is an important context where our Arvind Subramaniam, he says that actual GDP growth is 2011 to 2023 4 to 4.5%, while the official estimate concludes it to be approximately 6%. So there is a shift from how much we are growing to what kind of growth we are achieving. So there is a talk about happiness, where they talk about the rank of India in World Happiness Index, where we are ranked 118th out of 147, which is of course a very low rank, right? So what is the insight here? Growth without well-being is always incomplete development. We are, see, economic development is equal to economic growth plus your development as a human being or welfare policies, right? So if we are achieving economic growth, we have only attained one part of it, right? So the core idea of the editorial. So India जो है वो यहाँ पर दोनों GDP और happiness को अपना boost कर सकते हैं अंडर developed human centric industries में invest कर. So these are four industries that I told you: safety industry, cleanliness, relocation and relaxation. So what is the common thread? High latent demand है, underutilized resources है, and potential for employment plus welfare gains. So you will see in safety industry, India lacks safety in many forms. We are having such a high record in crimes, right? And these crimes are increasing every day. Frauds are there, road rages cases are there, natural disasters, and then cyber threats. So suppose people spend 1,000 rupees per month. Okay? People are spending 1,000 rupees per month and they are just receiving approximately 50 rupees per month towards their safety services. So what is going to happen? See, first of all, the shift will be seen in demands. For example, more spending will be done on security. Jobs will be created, for example, guards, tech experts, auditors, and then income will rise. Unemployed people will get some jobs and demand will increase
एंड सो यहाँ पर इकोनॉमी जो है दैट विल ऑल्सो एक्सपेंड। सो ये क्या कहते हैं कि रीअलोकेशन होता है डिमांड का, तो हायर जीडीपी मिलता है बिना टोटल स्पेंडिंग को कम किए हुए। सो सम एग्जांपल्स आर लाइक गेटेड सोसाइटीज हायरिंग गार्ड्स, ओके, वो जो क्लोज सोसाइटीज होती हैं, यू माइट हैव लिव्ड देयर और यू माइट बी लिविंग इन दोस सोसाइटीज। सीसीटीवी companies are growing, cyber security startups are booming, disaster management jobs are there. So more safety, more employment, higher GDP and higher happiness. Okay, so safety industry growth through security. There is a problem. There is a lack of safety in roads, public spaces, digital system, disaster management. So economic logic क्या है? Hiring more personals will be creating more jobs. People will be reallocating their spending. Demands will remain intact. So more safety will lead us to the higher productivity. Outcome: employment will increase, GDP will increase, and happiness will increase. So cleanliness industry के बारे में बात करें अगर, public goods as growth drivers. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम अपने पास में फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन आया था, राइट? सो इवन आफ्टर दैट वी आर सीइंग दैट देयर इज गार्बेज, पोल्यूशन, वाटर इशू, हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स, these are still existing. So if we are investing more in waste management, air purification, water treatment, it is going to create more jobs, healthy benefits, productivity gains. बट यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे वेस्ट एग्रीगेशन स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं, वेस्ट रिसाइकलिंग, डेली एक्यूआई कंट्रोल मेजर्स हमारे पास है, आरओ वाटर का बिजनेस कितना बड़ा है आपको भी पता है, देन अर्बन क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सो रिजल्ट्स क्या हैं यहाँ पर हमारे पास? लेस डिसीजेस, लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट, बेटर प्रोडक्टिविटी एंड हैप्पियर पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। सो दे टॉक अबाउट पॉल्यूशन, देन यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन हाइजीन। लिमिटेशंस क्या है? स्वच्छ भारत फोकस मेनली ऑन ओपन डेफिकेशन, हमें यहाँ पर एक्सपेंशन करना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट लेकर आने हैं, वेस्ट और डेब्रिस मैनेजमेंट को कम करना है, ठीक है, मैनेजमेंट को बढ़ाना है, ऑफकोर्स यहाँ पर सॉरी वेस्ट एंड डेब्रिस को कम करना है, क्लीन वाटर सिस्टम्स हमें यहाँ पर लेकर आने हैं। सो पब्लिक गुड्स, क्लीन एयर, वाटर डायरेक्टली improve welfare and productivity. What are your views on this geoengineering project done by Bill Gates? As you would be seeing the sky around you might be not so clean or clear. So what are your views over this? Relocation industry, fixing land misallocation. So this is one of the most important analytical part. Urban areas यहाँ पर हैं overcrowded, expensive. Rural areas हैं underutilized land. Land prices distort हुई हैं क्योंकि regulations है, financial repression है, policy distortion है. So what we are seeing actually, see, India has a land paradox. So rural India, land is available but income is low and utilized lands are actually not up to the mark, or we can say that there are underutilized lands, right? But in urban India, is a scarcity of land, high cost of living and congested cities. So why is this land so expensive? Of course, यहाँ पर license राज आया था real estate में. Then we had seen Land Acquisition Act 2013 restrictions, financial repression, people were investing in land and government land hoarding. तो लैंड जो है वो मिस अलोकेटेड है, फार्मर्स यहाँ पर हाई लैंड वैल्यू लो इनकम देखते हैं, अर्बन रेजिडेंट्स जो हैं यहाँ पर उनके पास में स्मॉल हाउसेस हैं और रेंट हाई है, सो दोनों ही अनहैप्पी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू सिटीज बनाओ, स्मार्ट सिटीज लेकर आओ, टियर 2 टियर 3 सिटीज को एक्सपेंड करो, लैंड प्राइस डिस्टॉर्शन को कम करो, प्लान रीलोकेशन कराओ। सो फॉर एग्जांपल गिफ्ट सिटी गुजरात, नवी मुंबई डेवलपमेंट, नोएडा, गुड़गांव एक्सपेंशन, these are resulting into construction boom, so GDP is increasing, then there are jobs, so labor, cement, steel, all these industries are providing employment, better living conditions, reduced congestion, fine. So यहाँ पर आप देखेंगे results क्या हैं? slums in cities, low farm incomes and inefficient land use, यहाँ पर जो हमारे पास है problems urban areas में है। तो नए सिटीज लेकर आओ, अर्बन क्लस्टर्स बनाओ, वॉलंटरी रिलोकेशन करो, लैंड और रियल एस्टेट पॉलिसीज रिफॉर्म्स लेकर आओ इसमें, एंड इससे क्या होगा? बेटर हाउसिंग होगी, एफिशिएंट वे में लैंड यूज होगा, हायर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी और जीडीपी ग्रो करेगा प्लस वेलबींग। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं रिलैक्सेशन इंडस्ट्री की तरफ। तो पार्क, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, म्यूजियम्स, टूरिज्म, कैफे, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो स्ट्रेस क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस? कोर्ट केसेस, ईयर्स ऑफ डिले हो रहा है, इनजस्टिस में पीपल आर अवॉइडिंग कोर्ट्स, अर्बन प्रेशर है, लैक ऑफ रिक्रिएशन है। सो हमारे पास जुडिशियरी जो है वो एक्सपेंड कर रही है, ज्यादा जजेस हैं,
फास्टर डिसीजंस हैं, डिपेंडेंसी कम हो रही है। तो कोर्ट के डिलेज होते हैं तो ज्यादा जजेस होते हैं, फास्टर जस्टिस मिलता है। यहाँ पर स्टॉक रिसोर्सेज एंड लीगल क्लैरिटी होगी, इन्वेस्टमेंट राइज होगी, स्ट्रेस में रिड्यूस होगा और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। तो वीकेंड टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। आईपीएल एंड स्पोर्ट्स इकोनॉमी, वेलनेस यहाँ पर इंडस्ट्री हमारी, जैसे योगा, मेडिटेशन, तो इससे क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ इज इंप्रूविंग, प्रोडक्टिविटी राइज हो रही है और कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। फाइन। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो ऑपोजिट है स्ट्रेस के, जुडिशियल डिलेज हो रहे हैं, स्ट्रेस और इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी आ रही है, रिसोर्सेज लॉक हो गए हैं डिस्प्यूट्स के बीच में, जुडिशरी एक्सपेंड हो रही है, पेंडेंसी कम हो रही है और एक्सेस टू जस्टिस हमारा इंप्रूव हुआ है। लोअर स्ट्रेस में बेटर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। व्हाट आर द की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो एडिटोरियल है ये यहाँ पर बात करते हैं अंडर यूटिलाइज लेबर की, मिस अलोकेटेड लैंड की, अनटैप्ड सर्विस सेक्टर्स की। रीअलोकेट करेंगे, आउटपुट इंक्रीजेस को, वेलफेयर को इम्प्रूव करेंगे। सो ग्रोथ और हैप्पीनेस फ्रेमवर्क में ट्रेडिशनल ग्रोथ जो है वो फोकस होगा आउटपुट पर, कैपिटल इंटेंसिव और जीडीपी सेंट्रिक थी, लेकिन अब हम यहाँ पर वेलबींग पर फोकस करेंगे। लेबर और सर्विस ड्रिवन होगी हमारी ग्रोथ और हैप्पीनेस सेंट्रिक होगी। इग्नोर करेंगे स्ट्रेस को और सेफ्टी को ट्रेडिशनली, लेकिन अब यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। सो आप देखते हैं कि अंडर यूटिलाइज रिसोर्स थियरी है, इंडिया के पास में अनएम्प्लॉयड लेबर, आइडल लैंड, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर हम यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं सेक्टर्स को, जीडीपी इंक्रीज करेगा और इन्फ्लेशन प्रेशर नहीं आएगा। तो ट्रेडिशनल ग्रोथ जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही थी, अब उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ सेक्टर्स पर फोकस करना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ में इंटीग्रेट इनकम इकोनॉमिक एक्सपेंशन विद इंप्रूवमेंट्स इन सेफ्टी, एनवायरमेंट, अर्बन प्लानिंग, mental well-being, as this directly influence productivity and human capital. Okay, got me? तो यहाँ पर आप देखेंगे जुडिशियल कैपेसिटी बढ़ानी है, लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो पब्लिक गुड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, लैंड मार्केट्स यहाँ पर प्रमोट करना है, अर्बन प्लानिंग। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन ड्रिवन ग्रोथ से हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कुछ की कॉन्सेप्ट है, यू कैन स्टडी इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पर आपके पास में फाइनल एनालिटिकल इनसाइट जो है वो लिखी हुई है। तो ये आपके पास ना एक एसए का या इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो हमारा काफी डाउन है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर इनको कोरिलेट कर आपसे कोई एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है where you can actually provide the better answer. नेक्स्ट जाते हैं, अल्कोहल एंड टबैको इन ट्रेड डील्स, पब्लिक हेल्थ वर्सेस ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो ये पूरा एडिटोरियल किस बारे में है पहले मैं आपको वो समझाती हूँ, देन वी विल बी मूविंग टू द पार्ट ऑफ रीडिंग। फाइन। तो यहाँ पर अल्कोहल और टबैको इंडस्ट्रीज, अब ये आपके जो हैं वो नॉर्मल गुड्स की तरह ट्रेड पॉलिसी में कभी भी ट्रीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हार्म करते हैं हेल्थ को, फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इकोनॉमिक बर्डन बढ़ा देते हैं सडनली। सो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है ये केवल इकोनॉमिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। आर्टिकल 47 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि हम डीपीएसपीस की बात करते हैं, ये बोलता है कि जो स्टेट्स हैं उन्हें कंजम्पशन अल्कोहल और ड्रग्स का कम करना चाहिए, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। ट्रेड पॉलिसी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी। सो ट्रेड पॉलिसी जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकती पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम लें तो स्टेट जैसे कि गुजरात, बिहार, नागालैंड, इनके पास प्रोहिबिशन पॉलिसीज हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे इंडिया जो है, सो अब इंडिया यहाँ पर किस तरह से इसको प्रोहिबिट करेगा इंटरनली। ठीक है। और कैसे यहाँ पर चीप फॉरेन अल्कोहल जो है एक्सटर्नली उसको अलाउ कर रहा है, ये उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। So there is a very important interdisciplinary issue. Should trade policy treat all goods equally, or should harmful goods like alcohol or tobacco be treated differently? The answer is clear. Public health must override trade liberalization. So what is the core argument? Alcohol and tobacco are not ordinary goods. They are public health hazards. They should not be included in low duty trade agreements. Trade policy must align with constitutional and social objectives. ये अभी यूरोपियन यूनियन से हमारी जो एफटीए हुई है ना, उसकी वजह से ये आर्टिकल है कि वहां पर हमने उनकी यहाँ से, देखो यूरोप में आपको पता होगा वाइन्स वगैरह के लिए बहुत फेमस है, राइट।
तो यहाँ पर उसी चीज के लिए है कि वहां से अगर हम इसको सस्ते में इम्पोर्ट करेंगे तो ये हमें अफेक्ट कर सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन की बात करते हैं कि आर्टिकल 47 डीपीएसपी जो है वो यहाँ पर प्रमोट करते हैं पब्लिक हेल्थ को। यहाँ पर हमें प्रोहिबिट करना है इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस को, एंड इसको इसके टवर्ड्स हमें काम करना है। तो इवन दो डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिफाइबल है, मीनिंग क्या है ना, देखो अगर डीपीएसपी को नहीं फॉलो करते हैं, ये ना एक डायरेक्शन देती है, प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इफ यू आर नॉट फॉलोइंग देम, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी, इट्स ओनली दैट कि ये एक प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल है लेकिन ये गवर्नेंस में, और यहाँ पर पॉलिसी डायरेक्शन के लिए बाइंडिंग होती हैं। सो ट्रेड एग्रीमेंट्स कैन नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दीज आर एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट द मोरालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम अगर डीपीएसपी को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, सो इट मीन्स कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। पब्लिक हेल्थ डायमेंशन से देखें तो अल्कोहल एंड टबैको का इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यू नो कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, देन लिवर डिसऑर्डर्स, then social effects में domestic violence, road accidents, productivity loss. So there are some key data points that they have provided. 40 million alcohol addicts are present in India. 1 plus million deaths annually due to tobacco. And you would have heard a lot times about the कच्ची शराब से बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाना, राइट। तो यहाँ पर इथेनॉल वगैरह होता है जो आपका शुगर इंडस्ट्री में, दे एक्चुअली ड्रिंक दैट एंड देन उनका डेथ हो जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स हैं। सो WHO प्लस लैंसेट, एंड देन यहाँ पर ना डोमेस्टिक वायलेंस का भी बहुत बड़ा रीजन जो है वो अल्कोहल होती है, और स्लो स्लो यहाँ पर टबैको, अल्कोहल या फिर ड्रग्स, ये सब क्या करते हैं, मेंटल अफेक्ट, हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये कहते हैं कि कोई सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन होता ही नहीं है। इकोनॉमिक इल्यूजन इन ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो ट्रेड नेगोशिएटर्स है ना, ये टैरिफ कट, मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट गेन्स, इन सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो हिडन कॉस्ट है वो तो ये यहाँ पर इग्नोर ही कर रहे हैं। हिडन कॉस्ट क्या है, हेल्थ केयर के ऊपर एक बर्डन आ रहा है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी, और सोशल कॉस्ट, फैमिली ब्रेकडाउन होते हैं, क्राइम्स होते हैं। तो यहाँ पर टैरिफ गेन जो है इसका मतलब नेट इकोनॉमिक गेन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बोलते हैं कि देखो अल्कोहल एंड टबैको ना, आप यहाँ पर डीमेरिट गुड्स भी इनको बोल सकते हैं। फाइन, सिन गुड्स बोलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीमेरिट गुड्स बोल सकते हैं जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, ये दूसरों को हार्म करती हैं, एडिक्टिव होती है नेचर में, कंज्यूमर्स यहाँ पर रैशनली बिहेव नहीं कर पाते, और सोशल कॉस्ट हाई होती है। तो टबैको ही यहाँ पर 10 लाख प्लस इंडियंस को पर ईयर किल कर देती है। अल्कोहल जो है वो कैंसर, लिवर डिसीज, रोड एक्सीडेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, इनसे लिंक्ड है। तो WHO का साफ साफ जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन होती ही नहीं है। फिर यहाँ पर बात होती है रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स की। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि भाई देखो रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, जैसे कि हमारे पास में ना ड्रंक ड्राइविंग बहुत हो रही है। अभी आप देखेंगे बहुत सारा ना, एक छोटा सा बच्चा था, साहिल समथिंग नेम था उसका, 23 इयर्स ओल्ड गाय, ही वाज हिट बाय अ कार एंड देन उन्होंने उसको दे दिया। बहुत सारे केसेस हैं। एक वो था क्या बोलते हैं, डिलीवरी बॉय थे, तो उनको ना एक कार ने हिट किया, तो ही वाज ड्रंक ड्राइविंग एंड नॉट द डिलीवरी बॉय, तो ऑफ कोर्स द कार ड्राइवर, एंड ही हिट हिम, ही डाइड ऑन स्पॉट। और यहाँ पर उस बंदे को तो खैर कुछ नहीं होना, बट एक पर्सन, उसकी जो फैमिली बैक इन द विलेज और इन सम टाउन वुड बी लिविंग ऑन डिपेंडेंट ऑन हिम, उनकी भी फाइनेंशियली यहाँ पर कितनी खराब सिचुएशन होगी। इमोशनल तो खैर कोई एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, क्या कितने लेवल का यहाँ पर डिस्पेयर फीस करना पड़ता है। सो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, अल्कोहल अब्यूज लिंक्ड विद फैमिली वायलेंस, पुअर हाउस होल्ड होते हैं, तो डेली वेज अर्नर्स जो होते हैं वो अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेस स्पेंडिंग करते हैं फूड एंड एजुकेशन पर, ठीक है। बच्चों की नहीं पढ़ाई लिखाई करानी है, पी लेना है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सो देयर आर फ्यू पीपल, नॉट एवरीवन ऑफ कोर्स, इफ दे आर अर्निंग मोर, ठीक है, आपने उनको दे दिया कि भाई ठीक है, अगर आप यहाँ पर दिन में 500 रुपए कमा रहे हो, आज आपको 700 रुपए है, तो वो जो 200 रुपए है ना, दे आर नॉट गोइंग टू सेव इट, दे आर एक्चुअली गोइंग टू कंज्यूम अल्कोहल। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर ट्रेड पॉलिसी प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कि इंडिया में क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे हमने किया, तो कंट्रीज क्या अग्री कर रही है कि भाई टैरिफ को रिड्यूस करेंगे और इजियर इम्पोर्ट्स होते हैं। सो अगर टैरिफ अल्कोहल या टबैको पर कम करेंगे तो फॉरेन ब्रांड्स जो है वो चीपर, अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल बन जाएंगे। तो अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, मानकर चलो कि इंपोर्टेड विस्की जो है ना वो 3000 रुपीज की आ रही है, और इंडिया में इतने ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में इंडिया में तो ये काफी महंगी हो गई है।
तो टैरिफ कट के बाद में तो ये और ज्यादा सस्ती हो गई, 1500 की हो गई। तो यूथ का जो कंजम्पशन है अल्कोहल का वो बढ़ेगा और मार्केट एक्सपेंड कर जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एक ग्लोबल बिहेवियर भी होता है हमारी एमएनसीज का, जो बिग कंपनीज होती हैं वो टारगेट करती हैं यूथ को, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करेंगी, एक्सप्लॉइट करेंगी वीक रेगुलेशंस को, जैसा कि अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में क्लियरली विजिबल है। तो लोअर ड्यूटीज कैसे हार्मफुल गुड्स पर इम्पैक्ट डालते हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, राइट, एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं, टारगेट करेंगे यूथ को, ब्रांड पेनिट्रेशन, कंजम्पशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा डेवलपिंग मार्केट्स में स्पेशली। फिर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो है वो इंटेंसिफाई हो जाते हैं। रोल क्या है ग्लोबल कॉर्पोरेशंस का, तो मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके पास स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैपेबिलिटीज हैं, लो रेगुलेशन मार्केट्स को ये टारगेट करते हैं। इंडिया कंजम्पशन हब बन चुका है हार्मफुल प्रोडक्ट्स का। सो डब्ल्यूटीओ एंड ट्रेड लॉ पर्सपेक्टिव की बात करें, सो डब्ल्यूटीओ अलाउ करता है पब्लिक हेल्थ एक्सेप्शंस को। यहाँ पर कंट्रीज जो हैं वो हार्मफुल इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, हायर टैरिफ्स को मेंटेन कर सकती हैं। इंडिया के पास इवन स्ट्रॉन्गर जस्टिफिकेशन है, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो आर्टिकल 47 की कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, पॉलिसी रिकमेंडेशन है हमारे पास। तो क्लियर रेड लाइन क्या है कि एक्सक्लूड करना है अल्कोहल एंड टबैको फ्रॉम ट्रेड लिबरलाइजेशन। अच्छा, ये डीपीएस की जो है वो गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। इंडिया के प्रेसिडेंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं हम एग्रीकल्चर, डेयरी में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में, तो सिमिलर अप्रोच हमें यहाँ भी जरूरी है। ब्रॉडर पॉलिसी थीम की बात करें तो नॉट ऑल गुड्स आर इक्वल इन इकोनॉमिक पॉलिसी, तो यहाँ पर एसेंशियल गुड्स में प्रमोट करो एक्सेस इनकी, स्ट्रेटेजिक गुड्स को प्रोटेक्ट करो और हार्मफुल गुड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो, एकदम बैन कर दो। अल्कोहल और टबैको जो है वो हार्मफुल गुड्स में आते हैं, तो इन पे रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, ना कि इन्हें लिबरलाइजेशन मिलना चाहिए। सो ट्रेड ऑफ यहाँ पर रेवेन्यू वर्सेस वेलफेयर के बीच में है। ट्रेड वॉल्यूम्स अगर बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर टैरिफ रेवेन्यू बढ़ेगा जो कि शॉर्ट टर्म गेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्थ एक्सपेंडिचर, सोशल इंस्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी लॉस, ये हमारे यहाँ पर एक्चुअल लॉसेस हैं विच वी आर गोइंग टू फेस, ठीक है। सो हिडन इकोनॉमिक कॉस्ट हमें समझ में आ गई कि गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि भाई टैरिफ यहाँ पर कट करने से ट्रेड गेन होगा, लेकिन रियल कॉस्ट जो है, जैसे अब कैंसर का ट्रीटमेंट, हमारे जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, वर्कर्स सिक हो गए हैं, सोशल कॉस्ट में वायलेंस, पॉवर्टी बढ़ रही है, फिजिकल बर्डन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर प्राइस अल्कोहल का 100 रुपए है तो रियल कॉस्ट तो सोसाइटी के लिए 300 रुपए हो गई। मार्केट फेल कर जाते हैं और गवर्नमेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए, और डब्ल्यूटीओ के रूल्स भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कंट्रीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं ट्रेड फॉर पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इंडिया के पास लीगल बैकिंग भी हो गई और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी हो गई, तो यहाँ पर तो हमें पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए कि हम इनको गुड्स को एक्सक्लूड करें। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर एक रेड लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो आप, यहाँ पर अल्कोहल, टबैको, इनको इंक्लूड ही मत करो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और टैक्स रिडक्शन डील्स में। तो यहाँ पर एक और पैरेलल एग्जाम्पल दिया जाता है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट कर रही है, राइट। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात हो रही है। सिन टैक्सेस पता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, हाई टैक्स लगा देती है अल्कोहल और टबैको पर ताकि कंजम्पशन कम हो, सोशल इम्पैक्ट यहाँ पर कॉम्पनसेट किया जाए। लेकिन एक साइड तो आप सिन टैक्स बढ़ा रहे हो, दूसरी साइड यहाँ पर जो ट्रेड है उसमें इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम कर रहे हो, तो पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन तो आपका भी दिख रहा है। सो ऐसे में यहाँ पर हमारे पास में ये बोलते हैं कि भाई कनेक्ट करो डेवलपमेंट के साथ में, अगर अल्कोहल और टबैको का कंजप्शन बढ़ गया, ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाएंगे और हेल्थ केयर बर्डन जाएगा बहुत ज्यादा बढ़। तो दैट यहाँ पर जीडीपी जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म में तो इंक्रीज होगी लेकिन वेलफेयर कम हो जाएगा। फाइन। सो यहाँ पर ये आपको वन लाइन समरी दे रखी है इन्होंने, आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर मुझे कंक्लूड करना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ट्रू इकोनॉमिक पॉलिसी मस्ट इंटरनलाइज social cost. Liberalizing harmful goods like alcohol and tobacco may boost trade figures, but it is going to undermine human capital, that which is actually the real driver of long term growth. Okay, so यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको पूछा जाता है मीन्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर कैसे आंसर लिखोगे, ट्रेड वर्सेस पब्लिक हेल्थ डिबेट को इंट्रोडक्शन में डालना, और बॉडी में आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, डब्ल्यूटीओ की फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, डिमेरिट गुड्स का, सोशल फ्लेक्सिबल कॉस्ट डालना, और कंक्लूजन में बैलेंस एथिकल ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करना। फाइन, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एडिटोरियल किसके बारे में है, ये बात करता है एली टू डिग्री प्रॉब्लम के बारे में, कि कैसे जो हायर एजुकेशन हायरिंग है इंडिया में वो डिस्टॉर्ट हो रही है। ये जो एडिटोरियल है ये यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से, अगर हम बात करें इंडिया में
जो आईआईटीज हैं, आईआईएम्स है, राइट, ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट किए जाते हैं और हायरिंग जो है वो मेरिट बेस से पैडिग्री बेस्ड जा रही है। सो यहाँ पर पैडिग्री क्या है कि आप कहाँ से पढ़े हो, और मेरिट क्या है कि आपको क्या आता है और क्या आप कर सकते हो। तो पैडिग्री जो है वो एक प्रॉक्सी की तरह यूज की जा रही है फॉर मेरिट, ऐसा एडिटोरियल में कहना है। तो ये एक एग्जांपल दे दें कि मान लो एक कैंडिडेट है, पीएचडी की हुई है आईआईटी से, एवरेज टीचिंग है, और एक कैंडिडेट है स्टेट यूनिवर्सिटी से, पीएचडी की हुई है, एक्सीलेंट टीचर है, पब्लिकेशंस भी हैं। तो यहाँ पर मैनी कॉलेजेस विल बी चूजिंग ए ओवर बी। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये जो आईआईटी या आईआईएम की डिग्रीज हैं ये क्यों वैल्यू की जाती हैं। तो देखो एडिटोरियल जो है वो यहाँ पर एंटी आईआईटी या आईआईएम नहीं है। ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पर बेटर फंडिंग है, रिसर्च इकोसिस्टम अच्छा है, ग्लोबल एक्सपोजर दिया जा रहा है, और ये हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी रिफ्लेक्ट करता है। और इनका डोमिनेंस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेशन में भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई मोनोपोली ओवर द टैलेंट, बट तो ये बोलते हैं कि जो इंडिया का पीएचडी इकोसिस्टम है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे AISHE से यहाँ पर इनको डेटा उठाया, इन्होंने बोला कि 2 लाख से ज्यादा ना पीएचडी स्टूडेंट्स से, 40,000 से ज्यादा पीएचडी अवार्ड की जाती है एनुअली अक्रॉस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो इंडिया तो मैसिवली एक्सपेंड कर रहा है रिसर्च कैपेसिटी में, लेकिन जॉब्स केवल वो एलीट बैकग्राउंड्स के लोगों को मिल रही हैं। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो कोर प्रॉब्लम है ना, वो गेट कीपिंग है, कि अपॉर्चुनिटीज को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो टू अ स्मॉल एलीट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो पीएचडी प्रोग्राम्स रन करते हैं, लेकिन हायर करेंगे केवल आईआईटी आईआईएम को, पीएचडीज को। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पर ये इनका कहना है कि खुद के पीएचडी ग्रेजुएट्स जो हैं उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे। सो एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है वो सिस्टम के अंदर खुद ही देखने के लिए मिल रही है। फाइन, अब एक बार रीड करते हैं। तो ओवर एम्फेसिस के लिए कहते हैं कि यहाँ पर इंक्लूसिविटी कम हो रही है और एकेडमिक क्वालिटी लॉन्ग रन में अफेक्ट होगी। तो प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, वो फिक्सेटेड है एलिट डिग्रीज के ऊपर, प्रायोरिटाइज करते हैं ब्रांड वैल्यू को ओवर टीचिंग एबिलिटी, जिसमें कि एक्सक्लूजनरी, क्रेडेंशियल ड्रिवन, क्वालिटी इनसेंसिटिव प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। एक एलिट डिग्री बायस देखने के लिए मिलती है, टॉप इंस्टीट्यूशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज की तरफ प्रेफरेंस रहता है। अब यहाँ पर टीचिंग स्किल्स, रिसर्च कैपेबिलिटी, सब्जेक्ट डेप्थ, इन पर फोकस नहीं कर रहे। तो ये नहीं है कि डिग्री यहाँ पर टीचिंग कॉम्पिटेंस के बराबर नहीं है, ये की इशू है यहाँ पर। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्नलिंग इफेक्ट है कि एली डिग्रीज एक सिग्नल ऑफ क्वालिटी देती हैं, मार्केटिंग के लिए यूजफुल होती हैं और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। कॉम्पिटिटिव प्रेशर में कॉलेजेस जो हैं वो रैंकिंग, प्लेसमेंट्स, रेपुटेशन इनके लिए कॉम्पीट करते हैं। इंफॉर्मेशन असिमेट्री में ये कहते हैं कि यहाँ पर टीचिंग एबिलिटी आप जज कर पाओ ये जरूरी नहीं है, और हम यहाँ पर डिग्री को, ठीक है, जो उसका ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है कि सिग्नलिंग जो है वो एक अंडर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगा। तो कंक्लूजन यहाँ पर या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सबसे पहले तो बहुत सारे जो कैपेबल टीचर्स होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज, टियर 2-3 इंस्टीट्यूशन से, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और फिर एकेडमिया में इनइक्वालिटी होती है, इंस्टीट्यूशनल हायरार्की में, सोशल इनइक्वालिटी में। तो टीचिंग क्वालिटी में डिक्लाइन होगा, एलिट ग्रेजुएट्स जो हैं वो रिसर्च या इंडस्ट्री को प्रेफर करते हैं, और टीचिंग इंटरेस्ट या स्किल्स वो लैक करते हैं। तो होमोजेनाइजेशन ऑफ थॉट होना चाहिए, लिमिटेड डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आइडियाज, बैकग्राउंड्स, पर्सपेक्टिव्स की। एकेडमिक इकोसिस्टम जो है वो नैरो और रिजिड अदरवाइज बन जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अल्टीमेटली सफर कर रहे हैं, लेस इंगेजिंग टीचिंग मिल जाती है उनको, बहुत बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। आपने देखा होगा शायद ना, अगर इफ यू हैव स्टडी फ्रॉम सम काइंड ऑफ प्रोफेसर और समवन फ्रॉम अ वेरी हाई यूनिवर्सिटी, at times they are not very good teachers, they have a lot of knowledge, okay, but they are not able to deliver that knowledge, and because of that what actually happens is that we are not able to even understand or grasp the concept too. So यहाँ पर ये तो at the end नहीं होना चाहिए, मेंटरशिप लिमिटेड हो जाती है। तो एजुकेशन क्वालिटी जो है वो टीचिंग के ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए, फैकल्टी की पैडिग्री क्या है उस पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल मिसअलोकेट हो जाती है, टैलेंट एफिशिएंट वे में यूज नहीं हो रहा, प्रोडक्टिविटी जो है एजुकेशन सेक्टर की वो रिड्यूस हो गई, तो स्किल डेवलपमेंट लोअर होगा, नॉलेज ट्रांसमिशन वीक होगा। सो यहाँ पर रिसोर्स मिसअलोकेशन लोअर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। तो हायर एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाना है, एलिटिस्ट नहीं बनाना। तो इंक्लूसिविटी क्यों मैटर करती है, टैलेंट पूल को एक्सपेंड करते हैं, डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं और लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं। फिर ये बात करते हैं पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, कि जो हायरिंग क्राइटेरिया है वो शिफ्ट होगा,
डिग्री बेस्ड से अब हम यहाँ पर स्किल बेस्ड टीचिंग इवैल्यूएशन रिसर्च आउटपुट की तरफ जाएंगे। टीचिंग असेसमेंट्स जो हैं उनको स्टैंडर्डाइज करेंगे, डेमो लेक्चर्स, स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है, पेडागोजिकल ट्रेनिंग उनकी कैसी है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेन करेंगे टीचर्स को कॉन्टिन्यूसली, टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ओवर रिलायंस जो है रैंकिंग पर रिड्यूस की जाएगी, तो लर्निंग आउटकम्स मिलने चाहिए, स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे यूजीसी है वो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज करते हैं कोर्स वर्क को, यूनिफॉर्म इवैल्यूएशन देते हैं, मिनिमम क्वालिटी बेंचमार्क देते हैं, लेकिन अगर सभी पीएचडी यूजीसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन। अब ये बोलते हैं कि इसमें दिक्कत ये है कि एकेडमिक इनइक्वालिटी है, केवल एलिट ग्रेजुएट जो है उनको जॉब मिलती है, अदर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, स्टेट यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स जो होते हैं उनको फैकल्टी रोल्स मिलने में दिक्कत होती है। फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो फोकस करते हैं कि कैसे भी कर ना आईआईटी आईआईएम में एडमिशन मिल जाए, इंस्टेड ऑफ कि वो यहाँ पर एक अच्छी रिसर्च करें। टैलेंट मिस एलोकेट हो जाता है, बेस्ट टीचर्स यहाँ पर माइट भी हायर ही नहीं हुए हो और स्टूडेंट सफर करें। तो जैसे अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं वहाँ पर टीचिंग एबिलिटी चाहिए, स्टूडेंट मेंटरशिप चाहिए, तो हायरिंग लेकिन फोकस करें इंस्टीट्यूशनल टैग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केटिंग में भी ये चीजें हेल्प करती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं वो दिखाते हैं कि भाई हमारे यहाँ से ये बंदा पढ़ा रहा है, वो बंदा पढ़ा रहा है, तो जरूरी तो नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, एंड दिस इज नॉट समथिंग आई एम मेकिंग अ फन ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट आई एम रियली टेलिंग यू आर ट्रूथ। ओके, सो आई हैव अ फ्रेंड, आई विल नॉट नेम हिम, ही इज एन आईआरएस, ओके, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है वो, और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने अपना आईआरएस क्लियर किया विद 256 रैंक, ओबीसी यहाँ पर उनका रिजर्वेशन था, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी थी, फाइन। अब यहाँ पर अच्छा खासा, ऐसा तो है नहीं ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस आता है, प्रीलिम्स वगैरह में इतना नहीं होता, फाइन। तो अच्छी खासी नॉलेज होगी तभी बंदा आईआरएस बना था, लेकिन उसके बाद से उनके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हुए यूपीएससी के, बट उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो मैनी ऑफ द पीपल आस्क्ड हिम कि अरे यार आपका यूपीएससी में प्रीलिम्स कैसे क्लियर हुआ, हमारा तो नहीं होता। ही डायरेक्टली सेड दिस एंड ही सेड दिस वेरी ऑनेस्टली कि देखो स्मार्ट गैस वर्क लगता है और मेरा तब लग गया, कहीं ना कहीं मेरा लक भी साथ में था। अगली बार जब उनका क्लियर नहीं हुआ तो ही एक्चुअली सेड द सेम लाइन कि लास्ट टाइम ऐसा हो गया था, इस बार नहीं हुआ। बट एक बात बताओ, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, तो ऐसे तो है नहीं नॉलेज की कमी है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऐसा नहीं है कि नॉलेज की किसी को कमी होती है या नॉलेज नहीं होती है या हम उनके इंस्टीट्यूशनल डिग्रीज के साथ में जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें ना मार्केटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक इंसान का जिसका एग्जाम क्लियर हो गया है उसको ज्यादा नॉलेज है, दूसरे को नहीं है। बहुत बार एग्जाम में जब प्रेशर होता है वो उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए जितना दूसरे बंदे ने कर लिया, तो उनको मिल गया एक अच्छा कॉलेज, दूसरे को नहीं मिल पाया। बहुत सारी सिचुएशन होती है, हेल्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो सारे फैक्टर्स जो कि इंटरनली आप सभी लोग जानते हैं, एंड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ मेनी ऑफ डिसीजेस, सो दे नो इट मोर देन मी कि क्या सिचुएशंस हो जाती हैं। तो ये सब चीजें हमें ऑफ कोर्स यहाँ पर एक लिमिट तक, ऐसा नहीं है कि आईआईटी या आईआईएम अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है या उन्हें फोकस नहीं देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, बट डजंट मीन कि हम बाकी सबको अंडरमाइन कर दें। ग्लोबल कंपैरिजन देखें तो हाउ डेवलप सिस्टम्स वर्क, यूएस और यूरोप में हायरिंग जो है वो रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग पोर्टफोलियो, पीयर रिव्यू कैसा है, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, केवल यूनिवर्सिटी के नाम से नहीं हो रही। तो एक प्रोफेसर अगर मिड टीयर यूनिवर्सिटी से है, स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशंस और गुड टीचिंग है, तो उनको एलिट ग्रेजुएट्स के ओवर प्रेफरेंस मिलता है। सो डीपर कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि क्रेडेंशियलिज्म की बात करते हैं कि आप यहाँ पर ओवर रिलायंस अपनी डिग्रीज पर या सिग्नल्स मत दिखाओ, इग्नोर करो एक्चुअल कैपेबिलिटी, क्रिएट करो इनइक्वालिटी को, और डिग्री जो है वो एक सिग्नल की तरह आपकी काम कर रही है एज पर सिग्नलिंग थियरी, जिसमें कि स्किल जो है वो रियलिटी है। और ओवर रिलायंस अगर हम इन सिग्नल्स पर कर रहे हैं तो इनएफिशिएंट आउटकम्स आएंगे विच इज एक्चुअल द फैक्ट। ओके, सो सिग्नलिंग थियरी क्या है कि डिग्री जो है वो सिग्नल के बराबर है और स्किल जो है वो रियलिटी के बराबर है। तो वाई प्राइवेट कॉलेजेस आर डूइंग दिस, सी मार्केट लॉजिक है कि यहाँ पर उनको ज्यादा एडमिशन चाहिए, बेटर ब्रांडिंग चाहिए, लेकिन यहाँ पर एड्स जैसे कि फैकल्टी फ्रॉम आईआईटी आईआईएम ऐसे आते हैं, तो ये हमारे मार्केटिंग के लिए हैं, ना कि यहाँ पर नेसेसरी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल हायरिंग की तरफ जानी चाहिए, रिसर्च क्वालिटी, टीचिंग एबिलिटी, पब्लिकेशन, स्टूडेंट्स का फीडबैक कैसा है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए, ओपन इवेल्युएशन होनी चाहिए, टीचिंग फोकस्ड हायरिंग होनी चाहिए, स्पेशली यूजी कॉलेजेस में डेमो लेक्चर्स होने चाहिए मोर देन डिग्रीज, स्ट्रेंथन करना है पीएचडी इकोसिस्टम को, इक्वल रिस्पेक्ट देनी है अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस को, बेटर फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करना है।
सो एजुकेशन सिस्टम शुड रिवॉर्ड कॉम्पिटेंस नॉट क्रेडेंशियल्स अलोन, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात करते हैं। आप इसमें 2-3 कोट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेडिग्री शुड इन्फॉर्म इवैल्यूएशन नॉट डिटरमिन इट, ओवर सिग्नलिंग लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रियल टैलेंट, अ हेल्दी एकेडमिक इकोसिस्टम रिक्वायर्स डाइवर्सिटी नॉट कंसंट्रेशन। ओके, तो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी आपके पास में एक तरीके से यहाँ पर 1 लाइन की समरी है इस एडिटोरियल की, और फाइनल एनालिटिकल इंसाइट जो है वो हमारे पास ये है कि हमें एलिट लेबल्स के ऊपर नहीं अपने स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम बनाना, रेदर इफेक्टिव टीचर्स के ऊपर, जो आईआईटी से भी हो सकते हैं और आईआईएम से भी हो सकते हैं, नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से भी हो सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है। लाइक करना वीडियो को, कमेंट कर बताना कैसा लगा, एंड यहाँ पर हम लोग बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।